So, good morning, students. Today we are going to start the fifth chapter of the history for class 7th. The chapter name is the rulers and buildings. So, its previous chapter we discussed about the Mughal dynasties, and here are mostly जो buildings made by the Mughals. In this topic, we will discuss about the in rulers and buildings. Which type of the buildings were made in the medieval period and what was their design, and we will also discuss about the different types of the designs and buildings on that time. Okay, so here is we are going to start the two buildings of the India. So here the first balcony of the Qutub Minar, and it is in the given in the picture. Yes, so Qutbuddin Aibak had this constructed around the 1199. So this is the important line for this. Qutbuddin Aibak had this constructed on his this is the 1199. Important. Notice the new pattern created under the balcony by the small arcs and geometrical designs. Can you see two bands of inscription under the balcony? Okay. So it means two bands inscription under the balcony. These are in Arabic. Notice that the surface of the मीनार is curved and angular. जो उसका सरफेस मीन्स बेस उसका जो है किस टाइप का है, curved and angular. Which type of the base of the Qutub Minar? It is the curved and angular. Angular type का उसका क्या है, शेप है, कहता है कहाँ, बेस में उसका. अच्छा, तो उससे पहले कहता है कि जो इसमें जो इंस्क्रिप्शन लिखा गया है कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है, इट इज़ इन अरेबिक लैंग्वेज. कुतुब मीनार में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं इन अरेबिक लैंग्वेज, अरबी लैंग्वेज में लिखी गई हैं. सो मोस्ट स्किल्ड पर्सन मेड दिस बिल्डिंग. अच्छा, दिस बिल्डिंग वॉज मेड 800 years ago with the stone and bricks. So very few buildings were made on that time. You can say on the 13th century by the stone and the bricks. Between the 8th and 18th century, kings and their officers built two kinds of the structures. So king had on that time the two kinds of the structures. So what are the चलो इनके टू काइंड से पहले हम एक बार और कुतुब मीनार के बारे में डिस्कस करते हैं. तो टू काइंड उसमें से हैं, वन फॉर द किंग, अनदर फॉर द हिज कॉमन मैन. सो फिगर नंबर 1 हियर, द कुतुब मीनार इज 5-story हाई बिल्डिंग्स. द बैंड ऑफ इंस्क्रिप्शन यू सी आर अंडर इट्स फर्स्ट बालकनी. तो हम ये कहते हैं ये जो कुतुब मीनार है दिस इज द 5-story बिल्डिंग, एंड इसमें जो बिल्डिंग में ये जो इस टाइप का जो बैंड देखे गए हैं और जो इंस्क्रिप्शन देखे गए हैं, इट इज इन द फर्स्ट बालकनी. द फर्स्ट फ्लोर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक एंड द रेस्ट वॉज द इल्तुतमिश अराउंड 1299. कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब बनाया था, 1199 में, और उसके बाद उसने क्या बनाई थी, ओनली फर्स्ट फ्लोर. उसके बाद का जो अदर जो स्टोरीज हैं वो किसने बनाई हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने. कब बनाई, अदर 4 स्टोरीज कब बनाई थी, 1299 में. ओवर द ईयर्स इट वॉज डैमेज्ड बाय लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक एंड रिपेयर्ड बाय अलाउद्दीन खलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक एंड इब्राहिम लोधी. जैसे जैसे समय बीतता गया, एज द टाइम वॉज पास्ड, द बिल्डिंग वॉज स्टार्टेड
need to repair. How need to repair? Due to the lightning and the earthquakes activities. डिफरेंट जो अदर ह्यूमन एक्टिविटीज जो हम कर रहे हैं उसके कारण भी क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत वहाँ पर उतना ट्रैफिक है, हो सकता है उतना डे बाई डे हमारी एक्टिविटी वहाँ पर बढ़ती जा रही है, इसलिए उसको क्या हो, थोड़ा रिपेयर की ज़रूरत हो। तो उसके लिए अदर कौन कौन से किंग हैं, दोज आर द अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक एंड इब्राहिम लोदी। दे ऑल्सो रिपेयर द बिल्डिंग। So we are discussing about the two kinds of the structures by the king and their kingdoms. The first for forts, gardens, residences and tombs. So that so two kinds of the buildings. First for the forts, palaces, gardens, residences and tombs. It means these are for the king. These are for the king. Okay. The next is the second order structure meant by the public activities. पब्लिक एक्टिविटीज़ में क्या क्या है, टेम्पल्स, मॉस्क, टैंक, वेल्स, कैरेवनरीज एंड बाजार से। सो सेकंड में क्या हो गए, टेम्पल्स, मॉस्क, कैरेवनरीज, वेल्स एंड बाजार से, ये दूसरे टाइप में हो गए। सो फर्स्ट टाइप के फॉर द किंग, सेकंड टाइप फॉर द कॉमन मैन, फॉर द पब्लिक। किंग्स वर एक्सपेक्टेड टू केयर फॉर देयर सब्जेक्ट्स एंड बाई मेकिंग स्ट्रक्चर फॉर देयर यूज ऑफ कम्फर्ट, रूलर्स ऑफ होप विथ when their praise है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वर ऑल्सो carried आउट by their इंक्लूडिंग मर्चेंट्स, उस समय जो मर्चेंट्स है उनके द्वारा भी लगभग ये काम होता था। दे बिल्ड टेम्पल्स, मॉस्क एंड वेल्स, हाउएवर डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, लार्ज मैंसन्स ऑफ मर्चेंट हैज सर्वाइव्ड ओनली फ्रॉम द 18th century। अच्छा, यहाँ पर कुछ अदर टाइप की बिल्डिंग के बारे में डिस्कस किया गया है। अब उसके राइट साइड में क्या दिया है, लेबर फॉर द आगरा फोर्ट, लेबर फॉर द आगरा फोर्ट। सो बिल्ड बाय अकबर, द आगरा फोर्ट रिक्वायर्ड 2000 स्टोन कटर्स। अब आगरा फोर्ट में कितने थे, 2000 स्टोन कटर थे, 2000 सीमेंट एंड लाइम स्टोन मेकर से, सीमेंट और लाइम स्टोन मेकर वाले कितने मसाले बनाने वाले, 2000 एंड 8000 अदर लेबर से, तो इतने थे। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन। अब इंजीनियरिंग स्किल कैसे कैसे डेवलप किया था, हाँ चलो, इंजीनियरिंग स्किल में क्या आ गया, एक सुपर स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है। सुपर स्ट्रक्चर मीन्स जो बिल्डिंग बनाते थे वो नीचे बीम और कॉलम हुआ करते थे और ऊपर रियल असली बिल्डिंग थी एक मंजिला छोड़ के। तो सुपर स्ट्रक्चर क्या हो गया, तो ग्राउंड से थोड़ा अबव एरिया, उसको क्या कह देते हैं हम, सुपर स्ट्रक्चर कह देते हैं। सो यहाँ पर क्या लिखा गया है, मोनूमेंट्स प्रोवाइड एन इंसाइट इन टेक्नोलॉजिकल यूज टू कंस्ट्रक्शन, टेक something like a roof for example, we can make this by placing wooden beams or a slab of stone across 4 walls, but the task becomes difficult if you want to make a large room with an elaborate superstructure. This requires more sophisticated skills। अब जो सुपर स्ट्रक्चर बनाना है तो उसमें क्या करना है, वो बहुत क्या है, स्पेशल स्किल की ज़रूरत उसको चाहिए, पर बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत चाहिए थी फॉर द सुपर स्ट्रक्चर से। अब उसमें कैसे बनाने हैं, वुडन बीम से और स्टोन बनाने हैं 4 वॉल्स में। अच्छा, तो बीम मीन्स जो तिरछे टाइप के से रखे जाते हैं, हॉरिजॉन्टल। बिटवीन द 7th and 10th century, architects started adding more rooms, doors and windows to building. Roofs, doors, windows were still made by placing a horizontal beam across 2 vertical columns, a style of architecture called trabit. It's also important. अब ट्राबिट और कोरवेल्ड क्या है, ट्राबिट और कोरवेल्ड ये कब की बात है, ट्राबिट और कोरवेल्ड कब फेमस थे, 7th and 10th सेंचुरीज में। ट्राबिट एंड कोरवेल्ड वर फेमस इन द 10th century। उसमें क्या हो गया, जो उसमें जो किंग थे या उसमें जो आर्किटेक्ट थे क्या क्या करने लगे थे, दे वर स्टार्टेड एडिंग द मोर रूम्स, डोर्स एंड विंडोज फॉर द बिल्डिंग से, और वहाँ पर रूफ, डोर और ये सब चीज़ें बनाने लग गए थे। और हॉरिजॉन्टल बीम मीन्स फिर वही हम क्या करते हैं, तिरछे टाइप के जो बीम रखे थे उनने, और 2 वर्टिकल कॉलम्स, 2 वर्टिकल कॉलम्स में 2 पिलर्स से। अब वो क्या हो गया, 1 हॉरिजॉन्टल एंड 2 वर्टिकल, कितने कॉलम्स हो गए, टोटल मिला कितने हो गए, 3 हो गए।
तो यहाँ पर क्या लिखा है? सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंजीनियरिंग स्किल्स एंड द कंस्ट्रक्शन से. So discussing about the superstructure and the 7th and 10th centuries architects, they are started the Trabit. Trabit is the important for this Trabit, जिसमें क्या हो वो 1 horizontal and 2 vertical buildings टाइप की हो, जिसमें होना है Trabit और Corbel. Trabit and Corbel. Okay, Trabit और Corbel. Maybe ask 1 marks और 2 to 3 marks क्वेश्चन. और एक ट्राबिट क्या है? जिसमें 1 हॉरिजेंटल और 2 वर्टिकल कॉलम्स हों, उसे हम ट्राबिट कहा गया है. अच्छा, सो 13 और जो 14 18 और 13 सेंचुरी के बीच की जो बात है, वहाँ पर जो ट्राबिट था ये क्या था? इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द टेम्पल्स, मॉस्क, टॉम्स एंड बिल्डिंग्स अटैच टू द लार्ज स्टेप्ड वेल्स, बाउलीज. अब क्या हो गया? जो ट्राबिट कहाँ कब फेमस थे? ये सब थे ये 13 to 18 सेंचुरी में बनाए जाते थे. और कहाँ पर? टेम्पल्स, मॉस्क, टॉम्स एंड इन अदर बिल्डिंग्स अटैच्ड टू लार्ज स्टेप्ड वेल्स. तो लार्ज स्टेप्ड वेल्स को क्या कहा गया है? बाउलीज कहा गया है. क्या कहा गया है? बाउलीज. बाउलीज मीन्स तो क्या थे? लार्ज स्टेप्ड वेल्स वर नोन एज द बाउलीज. बाउलीज पूछा जाता है क्या थे करके, तो अभी हम एक आध बाउलीज के बारे में भी और डिस्कस करेंगे. बाउलीज ये क्या है? बड़े बड़े जो कुएँ हुआ करते हैं सीढ़ी नुमा पानी के लिए, उसे हम बाउलीज कहते हैं उस समय की भाषा में. तो यहाँ पर आप देखें कि हियर रानी की बावरी और द क्वींस स्टेप वेल, ये देख रहे हैं क्वींस स्टेप वेल, रानी की बावरी इसको नाम कहा गया है. रानी की बावरी ये पूछा भी जाता है, राजस्थान में कहता है कि बूंदी में, ये जीके में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. इट इज़ लोकेटेड इन द बूंदी इन राजस्थान, इज द लार्जेस्ट अमंग द 50 स्टेप वेल्स दैट वर बिल्ड टू मीट द नीड फॉर द वाटर. तो कितनी स्टेप्स हैं? 50 स्टेप्स हैं, डाउन स्टेयर्स. ओ सो आर्किटेक्चरल ब्यूटी, द बावरी वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1699 बाई रानी नाथावत जी, द क्वीन ऑफ राजा अनिरुद्ध सिंह बूंदी. राजा अनिरुद्ध सिंह बूंदी क्या थी? ये क्वीन थी. उन्होंने कब बनाया था? इट वॉज मेड बाई कंस्ट्रक्टेड इन द 1699. क्या हो गया? रानी की बावरी. चलिए, अब यहाँ पर हमें क्या दिखाए गए हैं? कुछ ये फिगर्स दिखाए गए हैं. फिगर 2A, स्क्रीन इन द कुआवत अल इस्लाम मॉस्क, दिल्ली, लेट 12th सेंचुरी. 12th सेंचुरी के उसमें दिखाया गया है. जो 2A का हमें फिगर दिखाई दे रहा है, ये जो हम क्या कर रहे थे, ये इस टाइप का आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर बना देते थे. ये सेमी सर्कल टाइप का देख सकते हैं. ये देखो बाप रे, इतना खतरनाक उस समय ने बनाया है ये. तो अब फिर यहाँ पर देखें फिगर नंबर 2, कोरवेल्ड और ट्राबिट. कोरवेल्ड और ट्राबिट टेक्निक यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्क्रीन. तो ये देख रहे हैं आप, कोरवेल्ड और ये जो इसमें क्या करते हैं, उन हॉरिजेंटल टू वर्टिकल पोल्स है. ये ट्राबिट हो गया. और यहाँ पर भी आप ऐसे मान सकते हैं, तो ये हॉरिजेंटल, ये वर्टिकल, ऐसे पत्थरों की हेल्प से क्या बनाते हैं, स्टोन की हेल्प से उस समय ये बनाया गया है. तो आगे देखते हैं क्या क्या है. टेम्पल कंस्ट्रक्टेड इन द अर्ली 11th सेंचुरी. 11th सेंचुरी में कैसे कैसे टेम्पल बनाए गए यहाँ देख रहे हैं. द कंदरिया महादेवा टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 999 बाय द किंग धांगदेवा ऑफ द चंदेला डायनेस्टी. जो कंदरिया महादेव का जो टेम्पल है कब बनाया गया था? 999 में किंग धांगदेवा के द्वारा, जो चंदेला डायनेस्टी के क्या हैं, किंग थे उस समय. अच्छा, तो उसके बाद जो कहा गया यहाँ पर, तो 3B वाला कौन सा है? ये वाला होगा. इसमें इज द प्लान ऑफ द टेम्पल एंड ऑर्नामेंटल गेटवे लेड टू द एंट्रेंस एंड द मेन हॉल महामंडपा वर डांसेज वर द परफॉर्म्ड है. तो उसमें जो मेन हॉल होता था उसका नाम क्या कहते? महामंडपा कहा करते. क्या कहते उसे? महामंडपा. और जहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी जाती थी उसका नाम क्या था? गर्भगृह. तो उसका नाम गर्भगृह. सो गर्भगृह एंड महामंडपा. अगर आप कह सकते हैं कि
अपने यहाँ जो वंदना हॉल है उसे हम महामंडपा कह सकते हैं, या एमपीएस का एरिया महामंडपा, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं। और जो जहाँ पर चीफ डाइटी जो केप्ट इन द मेन श्राइन, जहाँ पर डाइटीज मीन्स गॉड एंड गॉडेस, जो देवी देवताओं को रखते हैं वहाँ पर क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम गर्भगृह। अपने स्कूल के आप मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कुछ मूर्तियाँ रखी हैं अंदर, जहाँ पर केवल पंडित जी या पुजारी जी जाते हैं तो, और लोग आरती पूजा पाठ कर देते हैं, हाथ जोड़ देते हैं, तो क्या हो गया, गर्भगृह हो गया। दिस वॉज द प्लेस ऑफ रिचुअल वर्शिप फॉर ओनली द किंग्स, हिज इमीडिएट फैमिली एंड प्रीस्ट्स गैदर्स। तो क्या कहा गया है, जो गर्भगृह होता था वहाँ सबको अलाउ नहीं होता था, जो राजा होते थे केवल वो जाया करते थे, या उनके जो नियरेस्ट फैमिली मेम्बर्स वो जाते थे। द खजुराहो कॉम्प्लेक्स कंटेन्ड रॉयल टेम्पल्स वर कॉमनर्स वर नॉट अलाउड एंट्री। तो खजुराहो टेम्पल में क्या कर रहा है, जो कॉमन पीपल थे दे वर नॉट अलाउड टू गो इनसाइड द टेम्पल। द टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विद एलोबरेटली कार्व्ड स्कल्पचर। तो टेम्पल को किससे बनाया गया था, एक कार्व्ड स्ट्रक्चर, मतलब जो पत्थरों को फर्स्ट क्लास वो छीने और हथौड़े की आपस में क्या किया जाता है, कार्व किया जाता है। अच्छा एक हमें यहाँ और मिल गया है, राज राजेश्वरा टेम्पल, दिस इज द इन साउथ ऑफ इंडिया। राज राजेश्वरा टेम्पल एट थंजावुर हैड द टॉलेस्ट शिखरा अमंगस्ट टेम्पल्स ऑफ इट्स टाइम। तो राज राजेश्वरा टेम्पल है वो अपने आप में क्या है, टॉलेस्ट शिखर था उसका, शिखर मीन से टॉप, जो आप देख रहे हैं शिखर मीन से टॉप, टॉप कहाँ है, ये है, यू कैन सी हियर दिस द टॉप, दिस इज द टॉप, जहाँ हमारा कर्सर घूम रहा है ये टॉप है। सो इट इज द वन ऑफ द टॉलेस्ट शिखरा ऑफ अमंग द अदर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स यू कैन से। अच्छा उस टाइम में क्या कहा गया है, अब यहाँ तक जो कंस्ट्रक्शन करना इतना इजी काम नहीं है, इसके लिए क्या क्या बनाते हो, एक तिरछी सीढ़ियाँ बनाते थे, उसे कहा था उनने डिक्लाइन पाथ कहा था, या इंक्लाइंड पाथ, INCLINED नोन एज द इंक्लाइंड पाथ। इंक्लाइंड पाथ क्या था, अब यहाँ से ऐसे तिरछे करके क्या जाएंगे, हल्के हल्के तिरछा करके ऐसे ऐसे क्या ले जाएंगे, एक सीढ़ी टाइप की ले जाएंगे, ऐसे रास्ता टाइप का बनाते थे वो। तो ये कितना होता था, अप टू 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर ऐसे बनाए जाते थे। और जो बोल्डर लगे हैं यहाँ पर इनका कितना वेट होता था, 90 टन के आसपास। तो इसका मतलब क्या था, उसमें ऐसी कोई बुलडोजर मशीन से नहीं थी, तो उनको यहाँ से क्या करना था, खाली तिरछा तिरछा करके रोलिंग करके उसको लाया करते थे बहुत सारे लोग। फिर बाद में क्या करते थे, उसे हटा दिया करते, जो ये यहाँ से रास्ता बनाया नहीं इसकी हेल्प से, इसे क्या करेंगे वो हटा देंगे। अच्छा अब इसको थोड़ा, ये इसमें सब यही चीज़ें बताई गई हैं, यहाँ पर लिखा है ना, ये द पाथ स्टार्टेड मोर देन 4 किलोमीटर अवे सो दैट इट वुड नॉट बी टू स्टीप एंड देयर दिस वाज डिसमेंटल्ड मीन्स डैमेज कर देना, उसको हटा देना। आफ्टर द टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बट द रेजिडेंट्स ऑफ द एरिया रिमेंबर्ड द experience of the construction of the temples for a long time. Even now a village near the temple is called चारुपल्लम द विलेज ऑफ द इंक्लाइन। तो कह रहा है कि यहाँ पर क्या है, ये अलग अलग अभी भी कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। What difference do you notice between the शिखराज of the two temples? Can you make out the शिखराज of the राजराजेश्वर temple and is twice as high as that of the कंदरिया महादेवा? तो कह रहा है कि जब आप कंदरिया महादेवा टेम्पल देखेंगे और राजराजेश्वर टेम्पल देखेंगे तो आप क्या डिफरेंस लगा सकते हैं, वो क्या है, जो ये यहाँ पर हम राजराजेश्वर टेम्पल है इसकी जो हाइट है ये कंदरिया महादेवा टेम्पल से क्या है, इसका लगभग डबल है कहता है, ट्वाइस एज हाई कहता है दैट ऑफ द कंदरिया महादेवा टेम्पल से। ये इनका मेन डिफरेंस है। अच्छा अब इसके बाद जो हम आगे बात कर रहे हैं, हियर टेक्नोलॉजिकल एंड स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट आर नोटिस्ड फ्रॉम द 12th century. Weight of the superstructure above the doors and windows was sometimes carried by the arcs. अच्छा, this architectural form was called the arcute. अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, आर्क्यूट की बात कर रहे हैं। अब आर्क्यूट क्या है, आर्क्यूट कहता है कि यहाँ पर ये है, जो यहाँ पर आर्क्यूट का मतलब होगा कि ये जो इसका जो ये टेम्प ये जो इसके ऊपर जो स्टोन्स हैं इनके वेट को इसके अंदर रखा गया है, इसमें तिरछा तिरछा करके सब पत्थर थोड़ा थोड़ा करके रख दिए, तो लास्ट में क्या हो गया, वो वेट बढ़ जाता है।
तो